सर क्या कह रहे हो? ब्राउजर पे जाओ बेटा एक बार। सर ब्राउजर पे हूँ। हाँ, इसको एक बार इस लिंक को खोल दो। स्टार्ट स्प्रिंग डॉट टैब, एक न्यू टैब खोल के उसमें खोल दो। हाँ, ना जावा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप तो 4 पॉइंट पे ही जाने दो। यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर लो पहले। सर ये तो सेम ही है ना जो आपने करवाया था पहले। हाँ, जो हमने पहले करा था ना। यहाँ फिर एक काम करते हैं, रुक जाओ अभी, स्टॉप शेयरिंग करना, मैं यहीं पे बताता हूँ फिर आपको। अगर आपने पहले तो पता ही है सबको वैसे ऑलमोस्ट। मुझे ये था कि 1 बाय 1 जो एरर रिमूव करनी है ना वो पता चल जाए, कि बहुत सारी एरर आ रही है इसमें, जो मैंने आपका वहाँ पे देखा है कोड। तो उसमें जैसे मैं अभी बता देता हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या क्या किए हैं, क्या कैसे इशू जो है वो रिजॉल्व करें हैं। अगर आप वैसा का वैसा फॉलो करते हो तो आपको पहले तो आपको क्या करना है, सारी एप्लीकेशन जैसे फॉलो करके यहाँ पे जो रिसोर्स वाला आपने मैंने लास्ट टाइम चेंज करवाया था, ठीक है। तो क्या होता है जब हम एक फोल्डर बना लेते हैं ना, वी आर क्रिएटिंग अ फोल्डर ओवर हियर लाइक एग्जांपल डॉट फाइल, जो उन्होंने बताया हुआ है। जस्ट लेट मी, लाइक यहाँ पे उन्होंने ना फोल्डर बताया हुआ आपको, दिस वन, कि क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर एज एन एग्जांपल। वो स्टेप है लाइक हियर, create a folder name as a example file. Like this. This folder will not accessible by the class path. We have created a class path after this course. We are going to create a web services configure. So इसमें मैंने ये class path एक लिया है, post details डॉट xst। सो ये हमेशा क्या एरर देता था लास्ट टाइम जब हमने यहाँ तक कर लिया था, इट विल गिव यू एन एरर दैट कोर्स डिटेल xst इज नॉट फाउंड। रीजन मीन कि हमने जैसे वो रखे थे एग्जाम्पल वाले में। सो यू गाइज नीड टू डू वन थिंग, सो ओपन योर सोर्स मेन रिसोर्स फोल्डर, src main and resource folder. Over here you need to create three files within this folder. No need to create a separate folder for that, like in this list. Sorry, and this content, it asks you to create an example file folder and then paste these two file and access the file within this, and then run the program. So in that case, whenever we run this program, we are not it will automatically recognize this particular folder, or automatically find the file within this folder. So you, what you need to do is to don't go for that. You just create these two files and paste it over here, or directly create over here two XML file and one XSD file like this, मैंने जैसे यहाँ पे करा हुआ है. After doing so, you need to uh, just save this, and again वही जो आपने करा था last time, you have to paste your plugins from there. And one more thing, this have to set that the file schema files tag आपको यूज करने हैं, and within that you need to write the full name of your file xst file. So when you are write this and save your project, so this folder or this package will automatically created, and within this all the files will be automatically created.
And after doing so, we need to go for these 4 or 3 classes. Okay. Then what we need to do is going through this, and when you are creating these all files, and we are writing this address. So what we have next, after creating these 3 or 4 files, we are going to create a visual file through the XST. तो यहाँ पे देखो बताया गया कि इस तरह से, तो पहले क्या हो रहा था, फाइलें क्रिएट ही नहीं हो रही थी ये वाली, क्योंकि उसको पाथ ही नहीं मिल रहा था, सही से लोकेट नहीं हो पा रही. When we have created this, it needs to be created these functions, course endpoint, like this function we need to create within the folder or within the package which we have created already. After doing so, we have to run this and create a visual file like this. जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, लाइक ये जो कर लिया, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं. वन इज योर एंड पॉइंट like this, and one is your so course detail and so management application जो है वो already थी. We just need to replace the content. ये जो मैंने थोड़ा सा content replace करा, and when you run this file, run this Java application, so in this maybe some of error are there because course endpoint and all, कुछ ना कुछ अभी एरर आ रही हैं, जो मैंने यहाँ पे जो एरर आ रही है इनको सॉर्ट आउट कर रहा था. अदरवाइज क्या होता है, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ विजुअल फाइल. जब आप इसको ओपन करते हो, ऑलरेडी बनी हुई है, अगर सर्वर काम कर रहा होगा तो यस. सो अगर आपका सर्वर काम कर रहा है, वो एरर जो आ रही है वो रेस्ट क्लासेस के लिए है. सो यू गाइस कैन चेक योर HTTP file is ready. Now you need to do what? You need to download the Visual. है, आपको वो डाउनलोड करनी है. That you can, what you can do, one thing, you can see your application it work fine or not, or respond fine or not. So when you download the extension, add this and write you need to click on the Whistler. So when you click it, so you will get the course details. So यहाँ पे देखो वो सारी चीजें आ रही हैं. Now get course detail पे click करो, you will get this. So यहाँ पे देखो post get method आ रहे हैं सारे. Okay, so now I'm posting one of the value like 1. Okay, and click on the go. When you click on it, so what we get, this is the response which we have created. If you guys can check, might be in this case. So response.get. Let's check this. किसी में कहाँ पे लिखा हुआ है, just a second. हाँ, ये कहीं ना एक मैसेज हमने डाला हुआ है. एक मिनट चेक. यस, ये देखो डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, स्प्रिंग बूट, और ये हमारा क्या है, एक सिंपल है, बट इसके बेस पे हमने जो वैल्यू पास करी है वो आएगी रिस्पॉन्स के केस में. ये रिस्पॉन्स का फॉर्मेट डाल दिया, बट वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू विच वी पोस्ट.
लाइक वन, ये देखो माइक्रो सर्विसेज कोर्स एंड देन ये आपका जो मैसेज आपके पास करा था डिस्क्रिप्शन में। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? और हमने कुछ नहीं करना है बेटा, जितने ये फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होने हैं, ये वाले जो मैंने जैसे लास्ट सर टाइम विजुअल फाइल का बताया। यस सर, जो वो स्किल नेटवर्क जो साइट है आप जो कहते हैं ना सीयू की, उस पे जो स्टेप्स हैं तो उधर से देख लेंगे ना आप। स्टेप्स तो वहां पे मिल जाएंगे आपको बेटा, ठीक है सर। पर पंगा पता क्या आ रहा है, मैं बताता हूँ। उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं ना, हाँ जी। अगर आप बिल्कुल उनको फॉलो करोगे और रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करोगे तो वो रेक्टिफाई हो नहीं पा रही। तो जो जो मतलब सोल्यूशन मिलता जा रहा है, उनको मैंने एक बार ना पूरा गो थ्रू करा है अब, तो उसका जो जो सोल्यूशन मिलता जा रहा है वो मैं साथ के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। तो अब देखो, पहले लास्ट टाइम हमने क्या करा था, हमने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइजर कर लिया था, बट वो क्या कर रहा था, वो उसको विजुअलर फाइल क्रिएट नहीं कर रहा था, वहां पे जाके वो एरर देना शुरू कर दिया था उसने। अब क्या हो रहा है, अब मैंने उसको फाइंड आउट करा कि क्या एरर क्या क्या हो सकती है। तो वहां पे एक सोल्यूशन मिला कि बाय डिफॉल्ट whenever we start our spring application, it will always find a resource path in the resource folder. तो वी आर उसमें जो एप्लीकेशन में दे रखा है और स्टेप्स में दे रखा है, दैट विल बी कि आप खुद का एक एग्जाम्पल फाइल क्रिएट करो। सो बेटर है कि हम उसको क्रिएट करने के बजाय वो जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे डाल दें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसको फाइल मिलना शुरू हो गई। उसको वहां पे पहले क्या एरर आ रही थी, कोर्स डिटेल XSD मिसिंग। तो मैंने क्या करा, मैंने रिलेटिव लाइक यहाँ पे जो ऐसे एड्रेस डाला था मैंने, relative address दिया, that example file slash course detail, and then it will give you an error that slash is not respond in simple XSD files। तो फिर मेरे को वहां से भी रिमूव करना पड़ा। देन आई गुड टू नो कि गेट टू नो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो बाय डिफॉल्ट है वो इस वाले में चलता है, मतलब वो रिसोर्स में फाइंड आउट करता है इसको बाय डिफॉल्ट। तो मैंने क्या करा, मैंने वहां से हटा के इनको यहाँ पेस्ट करके देखा एंड इट विल वर्क फाइन। तो मतलब ये सारी फाइल्स भी बन जाएंगी, उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स वाला है वो भी चल जाएगा, और विजुअल तक आप इजीली कर पाओगे। यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपका इजीली चल जाएगा, और आप वहां पे विजुअल एप्लीकेशन को एक रिस्पॉन्स जो है वो पास करके, सॉरी रिक्वेस्ट जो है वो पास करके आप चेक भी कर सकते हो। वन मोर पॉइंट, विजुअल डाउनलोड करके उसमें वैल्यू पास करके यू कैन गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। तो यहाँ तक हमें ये पता चल जाएगा कि ये हो गया विजुअल के थ्रू। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट इंटरफेस, बट यहाँ पे इंटरफेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस कोड में इंटरफेस में भी प्रॉब्लम है, तो वो मैं अभी वहीं ठीक कर रहा था कोर्स से पहले, इस चीज से पहले। तो एक बार मैं इसको पूरा ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसको कंप्लीट करवाया था तो वो कम से कम 3 लैब में खत्म हुआ था ये वाला, तभी जो आपका कोड था ये वाला तब चला था। अब इसमें पॉम फाइल्स में दोबारा से एरर है, तो वो मैं एक बार रेक्टिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं इसका पूरा का पूरा कोड जो है वो इस फ्राइडे तक हम रन कर लेंगे, तो आपका जो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर एक प्रैक्टिकल जो करवाना है, दैट वाज स्कल और जो स्टब था वो मैं एक दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि एक में तो उन्होंने बोला हुआ कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ मैवन प्रोजेक्ट। सो वहां पे मैवन में भी सेम प्रोजेक्ट आता है जब आप मैवन प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सर्च आउट करना होता है आपको किसको, ये जो फाइल्स स्प्रिंग फाइल्स हैं। तो यहाँ पे जब हम org.spring वगैरह का फाइल करते हैं, सर्च करते हैं org.spring,
तो हमें स्ट्रिंग की सारी क्या मिल जाएंगी, डिपेंडेंसी और वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी. यू कैन राइट हियर और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर लाइक जस्ट लाइक वी सेलेक्ट द वेब सर्विसेज एंड द प्रीवियस प्रैक्टिकल. क्लियरली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो नेट स्पीड स्लो है, दैट्स व्हाई इट टेक्स सम टाइम. यहाँ पे देखो ये आ गया है स्प्रिंग बूट. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. तो यू गाइस कैन, जेपीए का आ गया, ये देखो यहाँ पे आ रहा है स्प्रिंग बूट सैम्पल डेटा जेपीए. यस, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीज यहाँ पे होंगे. ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगर, मतलब आप यहाँ पे ना जाके, वेबसाइट पे ना जाके, स्प्रिंग जो आपकी, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी. मेरे ख्याल से स्टक हो गई होगी. सर आप एक बार इसकी क्या कहते हैं, एक बार स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग करके भेज दो, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता है हर बार स्टेप्स में, कहीं ना कहीं एरर आ रही होती है. ठीक है, मैं वो भी कर दूंगा बेटा, मैं वो कर दूंगा कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं. ठीक है, मतलब एक बार पूरा एरर सॉर्ट आउट होने दो, मैं एक पूरी एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन दोबारा से बना के आपको एक वीडियो पेस्ट कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा या फिर मैं वीबी पे अपलोड कर दूंगा. ठीक है, और फिर जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्लीज डू इट ऑन योर ओन पीसी, बिकॉज सम ऑफ यू आर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ अदर्स. क्लियर है ये चीज? Okay, let me find out the error within this. Till that time, you can do your some work, do your own work. So just let me rectify this, huh? Till that time. Clear? यहाँ तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो बाकी भी. या मुझे एब्सेंट लगानी पड़ेगी ये सोच के कि कोई एक्टिव ही नहीं है क्लास में आज, सब सोए पड़े हैं.